Hello everyone, I welcome you back to the channel. Today we will discuss the most requested video on my channel, as well as my DMs are all filled with कि सर अभी we are in second year, we are in third year, which marrow या DAMS या prep letter क्या लेना है, how we have to utilize it for getting better ranks or getting better score, and how one should judge कि अभी ये platform चाहिए, maybe year wise देखें कि first year में ये लिया, second year में उनको ये better लग रहा है तो ये लिया, third year में ये लिया, है ना. So ये सब जो सारे question है that how when to decide the coaching platform, and once it gets decided, whatever you decide, how you have to utilize it as per your prof. Okay, so we will discuss everything regarding all the coaching platforms currently famous for NEET PG preparation, and this is completely honest review, guys. This is not at all any kind of sponsored video. This is my own opinion, and these all opinions are due to what I have used in these particular times. So what all I have used, I have tried to share my experience with you. There is no coupon code. You need to make your own decision whatever you need to buy. Also, only promotion is ki please follow my Instagram page MedShots if you have any other query, as well as for some kind of exciting content. So now let's begin with the question that as a first year, second year, third year or final year student, what should be your priority, DAMS versus Marrow versus Prep Ladder. Currently I'll be discussing these three platforms because I have used them the most. I'll also have to get some more feedback for reviewing the others, but today let's discuss this in particular. So what are all the areas that we will discuss? That obviously when to decide pros versus cons, and then individually कि आप इस ईयर में कैसे how much you have to study from it, आपको बुक्स पढ़ना है या नोट्स पढ़ना है, कैसे बैलेंस करना है, कितना क्वेश्चन बैंक लगाना है, कितना टेस्ट लगाना है, ताकि इंटर्न में आके आप अपना एक रूट फॉलो कर सके. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो. आई डोंट नो, आई विल जस्ट रिकॉर्ड इट एंटायरली and then either we will release it in parts or see how much we can go in this particular video. So now let's begin with a general overview. Right now this is something which is common to every prof, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे फाइनल ईयर के. तो whenever you are preparing for NEET PG, you attend the classes या you सी द वीडियो लेक्चर्स. ओके, फिर वीडियोस के बाद आप नोट्स बनाते हो. नोट्स आज की तारीख में प्रिंटेड भी मिलते हैं और हैंडमेड आप खुद जो बनाते हो. राइट, देन आप क्वेश्चन बैंक करते हो प्रैक्टिस के लिए. देन यू गिव टेस्ट. टेस्ट कैन बी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट ऑफ एंटायर सिलेबस, एंड देन मिनी टेस्ट कुछ 20-20 क्वेश्चन की ऐसे करके. राइट, देन देयर आर सम एडॉन्स फीचर्स जैसे कि पर्ल या फ्लैश कार्ड. जो मैरो में पर्ल्स होते हैं, फ्लैश कार्ड डैम्स में. राइट, कस्टम मॉड्यूल्स आजकल सारी ऐप में आने लग गया है, रिसेंट अपडेट्स, UI, रिविजन वीडियोस और ये सारी चीज़ें. तो ये सारी कैटेगरीज में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि मुझे क्या लगता है किसकी क्लासेस, किसके वीडियोस ज़्यादा बेटर है और कैसे आपको वो चीज़ डिसाइड करना है. ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नो प्लेटफॉर्म इज सुपीरियर, इट्स ऑल इक्वल. अल्टीमेटली वी आर द वंस हु नीड टू स्टडी इट वेरी वेल, बिकॉज सब कवर कंटेंट कर देते हैं 99%. इट्स यू who will decide that whether you'll get selected or not. And above all, you need to also worry about the cost. So if you are looking out for some affordable option, then you need to think differently. So I'll discuss all these things first, and then we will go for prof wise plan. Right, so now first thing, video lecture या classes. Right, so video lectures goes for Marrow Prep Ladder. वहाँ पे video lectures available है. DAMS में आपको live classes का, DAMS is basically मोर कंसर्न विथ लाइव क्लासेस. ऑल्दो उनका जो खुद का ऐप है ई मेडिकोस, उस पर भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्लासेस के मिलते हैं. बट राइट नाउ लेट्स फोकस अपॉन कि लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है या वीडियोस. ठीक है, अब सपोज करिए आप दिल्ली में हैं तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ लाइव क्लासेस एज वेल एज वीडियोस. बट इफ यू आर से सपोज इन अ सिटी रतलाम, जहाँ पे अभी लाइव क्लासेस की फैसिलिटी नहीं है, या तो वर्चुअली क्लासेस हैं जो ट्रांसमिट हो रही हैं, या तो फिर ऑब्वियसली वीडियो लेक्चर्स हैं. सो इन दैट केस देयर इज नो डिस्प्यूट. अगर आपके पास है ही नहीं लाइव की फैसिलिटी तो आपको वीडियो लेक्चर्स पे ही जाना पड़ेगा. नाउ हु शुड चूज लाइव क्लासेस और वीडियो क्लासेस? सो अगर आप थोड़े से लेजी हैं या अनमोटिवेटेड है, आपको लगता है कि मेरे से वीडियो मतलब मुझे चाहे 100 वीडियो दे दो, मेरे से नहीं देखते बनेगा. राइट, सो यू कैन चूज डैम्स, बिकॉज वहाँ पे क्लासेस का एक शेड्यूल रहेगा कि आपको आना ही है, आपको अटेंड करना ही है. सो उस बहाने आपकी वो क्लासेस चलती रहेंगी. राइट, बट इफ़ यू थिंक दैट यू आर डिसिप्लिन, यू हैव अ स्टडी पार्टनर, मे बी लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ सकते हो, सो देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर मैरो प्रेप लेटर एंड फिनिश द वीडियोज इन से पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन.
इफ़ यू वांट टू डेवलप लॉन्ग सिटिंग, एक आदत होना चाहिए। नीट के टाइम पे हम काफ़ी लंबे सिटिंग में पढ़ लेते थे, अब जाके पूरा छूट जाता है। आपको इंटर्न में वापस से लंबे सिटिंग में पढ़ना है, सो यू वांट टू डेवलप दैट हैबिट, सो यू कैन मे बी चूज लाइव क्लासेस, क्योंकि वहाँ पे आपको 6-6 घंटा 12-12 घंटा ईजिली बैठना ही पड़ता है, राइट। देन एट योर ओन कम्फर्ट, इफ़ यू वॉन्ट कि नहीं यार 6 घंटा मुझसे तो नहीं होता, आई फील 1 आवर का सेशन इज़ फाइन, फिर ब्रेक ले लो 5-10 मिनट, यू वॉन्ट योर ओन कम्फर्ट, देन यू शुड गो विद मैरो प्रेपलेटर के वीडियोस। देन इफ़ यू वांट टू हैव दैट एनवायरनमेंट कि यार बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ लूँगा, नहीं तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इफ़ यू वांट दैट फील लाइव क्लासेस का, तो यू कैन श्योरली गो विद डैम्स। बट इफ़ यू वांट कि यार डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं फ़ोन में, बट यू कैन अवॉइड दोज डिस्ट्रैक्शंस, यू कैन मे बी कीप एन सेपरेट टैबलेट या आईपैड जिस पे आप वीडियोज़ देखो और फ़ोन अलग रखो, तो मे बी यू कैन गो फॉर वीडियो लेक्चर्स। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, राइट। तो अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करोगे तो एक एडवांटेज जो होगा, जो कि अनडिस्प्यूटेड है, कि टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अगर मैं सेकंड ईयर में डैम्स ज्वाइन करता हूँ तो मेरा सेकंड ईयर उसी समय कंप्लीट होगा, फर्स्ट ईयर भी रिवाइज हो जाएगा, मे बी थर्ड ईयर का अगर वो कुछ करवाएंगे तो वो हो जाएगा। थर्ड ईयर में ज्वाइन करूँगा तो फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट सेकंड ईयर सारा फाइनल ईयर शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। तो काफ़ी स्पीडली और टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बट यहाँ पे आपको क्या है, आपको खुद से एक टाइम टेबल बनाना है, तो आप थर्ड ईयर में सिर्फ थर्ड ईयर ही कर पाते हो, क्योंकि 100 वीडियो लेक्चर्स होते हैं, राइट। सो जो टाइमली सिलेबस वाला पार्ट है वो क्लास में एडवांटेजेस है। बट अगेन अगर आपको कॉलेज की स्टडीज़ के साथ बैलेंस करना हो, या तो आप कॉलेज में या तो बस ऐसे अटेंडेंस के लिए जाते हो, बट अगर आप पोस्टिंग्स और ऐसी कॉलेज की क्लासेस को भी सिंसियरली अटेंड कर रहे हो, तो इफ़ यू वांट टू बैलेंस, तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वहाँ पे अब अगर पीएसएम पढ़ा रहे हैं आपकी कॉलेज में, सपोज कोई क्लास चल रही है ऑफ्थेल की कोई क्विज है, ऑफ्थेल की कोई टेस्ट है, तो अब आप ऑफ्थेल की क्लास तो अगले महीने है ना। तो दैट इज़ द थिंग, व्हेन इफ़ यू वांट टू बैलेंस इट विद कॉलेज स्टडीज़, देन ऑब्वियसली आप कभी भी वीडियो लेक्चर्स उठा सकते हो और आप वो चीज़ रिवाइज कर सकते हो। अगेन द सेम थिंग, अगर मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा, मैंने नोट्स बनाए, मैंने क्लास में नोट्स बना लिए, अब मेरे पास वीडियोज़ यूजुअली 1 साल बाद नहीं रहेंगे। बट अगर मुझे सपोज करो 1 साल बाद भी मैंने वीडियो लेक्चर्स देख के बनाए हैं, तो आई कैन आफ्टर 1 ईयर आई कैन अगेन रिविजिट 2x पे वीडियो देख सकता हूँ कि क्या था वो। तो दीज आर पर्टिकुलर एडवांटेज ऑफ दिस। अगेन लाइव क्लासेस में टीचर आपके सामने रहता है, तो यू कैन आस्क डाउट्स डायरेक्टली, एज वेल एज जो दूसरे स्टूडेंट्स पूछते हैं उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। बट यूजुअली जैसे मैंने कहा, लाइव क्लासेस के सेंटर्स होते हैं, तो अगर आपकी सिटी में ऑप्शन ही नहीं है, आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है दूर, तो ट्रैवल फ्री के लिए अगेन वीडियो लेक्चर्स। देन सडन क्विजेज, जैसे मैंने आपसे कहा, सडन कुछ अनाउंस होता है आपको एकदम से, लाइक मेरे साथ पर्टिकुलरली हुआ था, व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर आई जॉइन डैम्स, फिर मेरी साइकेट्री की क्विज आई, तो साइकेट्री इज अ फाइनल ईयर सब्जेक्ट, सो आई कुड नॉट ऑब्वियसली डू दैट, देन आई हैव टू टेक अ प्रेप लेटर सब्सक्रिप्शन फॉर दैट साइकेट्री सब्जेक्ट। फिर मैंने उससे वो 2 दिन 4 दिन में सारे वीडियोस देख के फिर वो क्विज दी, एंड वी अल्टीमेटली वॉन द क्विज। सो इन दैट केस वीडियो लेक्चर्स आर अ बेटर ऑप्शन। बट इन केस if you want to retain better, like video lectures are all up to you, मतलब आप कितने अच्छे से सुन रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप प्रिंटेड नोट्स में लिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं क्लासेस में जब आप लिख के नोट्स बनाते हो, बिकॉज हैंडमेड नोट्स ही बनेंगे लाइव क्लासेस में, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ प्रिंटेड नोट्स, यू विल मेक योर ओन नोट्स, राइट। सो दिस विल ऑब्वियसली बी साइंटिफिकली मोर बेटर रिटेन। और आपने एक चीज़ लाइव सुनी होगी और एक चीज़ होती है जो आपने वीडियो देखा होता है, तो ऑब्वियसली इफ यू लाइव आप सुनते हो तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रिटेन्ड होती है। सो दीज आर जस्ट प्लस माइनस पॉइंट्स, यू नीड टू वेट दैम अकॉर्डिंगली। देन सो द अल्टीमेट कंक्लूजन दैट व्हाट यू कैन डिराइव ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि जो ये वाला पॉइंट था कि क्लासेस, तो उसके हिसाब से क्या कंक्लूजन बन रहा है हमारा, कि डैम्स में बेसिकली लाइव और ई मेडिकोस दोनों चीज़ें आ जाती हैं। आजकल उनकी जो ऐप है ई मेडिकोस, उस पर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी डाल देते हैं जो उनके क्लासेस के होते हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रॉफ एज वेल एज पीजी प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके नोट्स काफ़ी सफिशिएंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम पढ़ाया गया है जो आपके प्रॉफ में काम नहीं आएगा। ऑलमोस्ट आपका प्रॉफ का 80% कवर हो जाता है, कुछ 10-20% टॉपिक्स आपको बुक से पढ़ने पड़ते हैं। मैरो इज द डिटेल्ड एंड मोस्ट इन वॉल्यूम इन एनी सब्जेक्ट, यू कैन राइट इट डाउन राइट नाउ। एज ऑफ नाउ व्हाट आई हैव फेल्ट इज कि चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, प्रेपलेटर का फार्मेकोलॉजी उठाओगे, मैरो का फार्मेकोलॉजी उठाओगे, डबल वॉल्यूम का डिफरेंस है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये है कि आपका प्रॉफ्स 95% कवर हो जाता है पीजी के साथ साथ, राइट। पीजी में अगेन यू नीड टू बी सिलेक्टिव, आपको अब देखना पड़ेगा उसमें से किस में क्वेश्चन आ रहे हैं, बट आपका जो प्रॉफ वाला पार्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे ईजी हो जाता है, बट ऑब्वियसली ये टाइम भी लेगा।
तो कोई इंटर्न होता है तो इंटर्न यूजुअली प्रेप लेटर प्रेफर करता है, डैम्स प्रेफर करते हैं बिकॉज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है मैरो का. बट इफ़ यू आर अ प्रोफ स्टूडेंट यू कैन गो विद मैरो ताकि आप वो जो हाई वॉल्यूम कंटेंट है उसको रिवाइज कर सको. ऑन द अदर नोट प्रेप लेटर में वॉट आई हैव फेल्ट इज कि कंटेंट काफ़ी शॉर्ट दिया हुआ है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का तो बहुत ही शॉर्ट है और वो मोस्टली नीट पीजी के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है, नो डाउट. बट प्रॉफ्स के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी. सो इफ़ यू आर समवन की बुक पढ़ने की हैबिट छूट गई है या टाइम कम है एग्जाम में, सो आई थिंक आपको शुरू से मैरो पढ़ते रहना चाहिए. दिस विल हेल्प योर टाइम सेविंग इन बुक, राइट. सो प्रेप लेटर इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, बट अगेन जितना देखिए जितना थ्योरी में आपको नोट्स कम पढ़ाए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक हर प्लेटफॉर्म का आपको एडिशनल कंटेंट देगा, तो यू विल नीड टू ऐड मोर फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. तो आपका ये वाला टास्क अगर इजी भी हो गया, ये टास्क टफ हो गया. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे थ्योरी आपने टाइम दे दिया, बट क्वेश्चन बैंक थोड़ा ज़्यादा स्मूथ होता है एज कम्पेयर टू प्रेप लेटर. सो दिस इज द कंपैरिजन. आई विल नॉट डिराइव एनी कंक्लूजन, यू विल हैव टू डिराइव अकॉर्डिंग टू योर ओन सर्कमस्टांसेस. देन लेट्स गो टू द नोट्स पार्ट. नोट्स पार्ट में अगेन हैंडमेड नोट्स है. हैंडमेड नोट्स में देयर इज डैम्स, ठीक है. डैम्स कभी प्रिंटेड नोट्स नहीं देगा, तो आपको हैंडमेड नोट्स बनाने पड़ेंगे, विच इज अ गुड थिंग विद रिस्पेक्ट टू द रिटेनिंग पावर. ओके, मैरो प्रेप लेटर में यू विल हैव द ऑप्शन, या तो आप खुद बनाओ, विच इज गुड. If you can't make, then you have the printed option, right? So now handmade notes जो हैं वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के हो, no doubt are the gold standard. सबसे conventional way है of preparing for any kind of exam. बट राइट नाउ नीड ऑफ द आर इज प्रिंटेड नोट्स. मे बी या तो टाइम कम बचता है या वीडियो लेक्चर्स की ड्यूरेशन बहुत बढ़ चुकी है. आज की तारीख में प्रिंटेड नोट्स हर कोई यूज़ कर रहा होता है, राइट. नाउ इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स लाइक PSM में पूरा थ्योरी है. मतलब PSM इट्स नॉट लाइक कंसेप्ट है, कोई फ्लो चार्ट से बहुत भारी भारी लिखा हुई थ्योरी है. तो आई थिंक आप उसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं भी करोगे, तो आप सीधे सीधे नोट्स यू कैन टेक द प्रिंटेड नोट्स. देयर आर इमेज बेस्ड जो सब्जेक्ट होते हैं, रेडियोलॉजी, डर्मा, साइकी. ये साइकी इज बेसिकली अगेन वेरी शॉर्ट थ्योरी, नॉट मच ऑफ कंसेप्ट एंड आर्ट, राइट. सो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें इमेजेस इतनी ज़्यादा होती है, तो अगर आपके पास प्रिंटेड नोट्स होंगे तो ऑब्वियसली आपकी इमेजेस जो है इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी, ठीक है. और हैंडमेड नोट्स यूजुअली लाइव क्लासेस हो तो ही आप लिख सकते हो, नहीं तो प्रिंटेड में क्या होता है, आप स्टार्ट करोगे लिखना, मतलब हैंडमेड में अगर आपको मैरो प्रेप लेटर के हैंडमेड लिखना है, आप स्टार्ट करोगे कि ना बीच में गिव अप कर दोगे, यू विल ऑर्डर देयर नोट्स, राइट. सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज कि यू कैन मिक्स मैच. यू कैन मिक्स मैच मतलब मेडिसिन ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कहीं से भी पढ़ो, उसमें बहुत कंसेप्ट्स हैं, तो व्हाट आई वुड एडवाइस इज उसके नोट्स खुद से बना लो. बिकॉज क्या होता है, कंसेप्ट्स अपने हाथ से लिखोगे अच्छा रहेगा, सर्जरी अच्छा रहेगा. बट छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, औरतों हैं जिनमें इमेज बेस्ड है, तो उसके प्रिंटेड नोट्स मंगा लो, ठीक है, यहाँ प्रिंट करा लो अपने नियर बाय शॉप से. रिटेनमेंट ऑब्वियसली हैंडमेड नोट्स में ज़्यादा रहता है, लेकिन ऑन द सिमिलर नोट आप अगर वो नोट्स बचाने में टाइम बचा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं रिविजन्स भी ज़्यादा कर सकते हो. तो इट इज़ आई थिंक इट इज़ आज की तारीख में काफ़ी इक्वल है, क्योंकि मैंने भी प्रिंटेड नोट से कुछ सब्जेक्ट करे हैं एंड आई फेल्ट कि रिविजन ज़्यादा हो जाते. तो अगेन बात एक ही है, मतलब रिटेन तो अपने को ही करना है, दिमाग तो अपना ही है, बट yes obviously you need to think about yourself and then this is more or less cost effective. मतलब ठीक है, अगर आप एक बार में 6-7 हज़ार के नोट सोचते हो 19 सब्जेक्ट्स के, तो लगता है यार 6,000-7,000 रुपीज़ अपन दे रहे हैं, बट उतनी आपकी नोटबुक्स भी लग जाती हैं, आप बाहर से फोटोकॉपी कराते हो, लगभग उतना ही पड़ जाता है इन द लॉन्ग रन. सो आई थिंक थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब वर्थ द प्रोडक्ट है, राइट. देन प्रिंटेड नोट्स लाइक हैंडमेड में तो देयर इज नो डिस्प्यूट, डैम्स ही आज की तारीख में हैंडमेड नोट्स दे रहा है. सो इफ़ यू आर हैंडमेड नोट्स वाला यू शुड गो टू डैम्स. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रिंटेड नोट्स आई वुड सजेस्ट मैरो के प्रिंटेड नोट्स, ऑल्दो बेटर रहते हैं, लेकिन दिस इज अगेन समथिंग रिलेटेड टू वॉल्यूम और जो पेपर क्वालिटी और जो फील्स है ना. बाकी जो प्रेप लेटर है उसमें अपडेट्स बहुत अच्छी होती है, मतलब प्रेप लेटर क्या है, हर बार अपने आप को इनोवेट कर रहा है. अभी वो कुछ तरीका लेके आए हैं नोट्स को बेटर करने का, फिर कुछ तरीका लेके आएंगे, फिर कुछ तरीका है. मैरो इज समथिंग कॉन्स्टेंट. मैरो एक बार बना देता है, फिर वो पूरा 5.0 लाता है, 4.0 लाता है. Prep letter keeps on updating itself. So if you have prep letter के notes, it's also very good, right? So now let's proceed to the third point, question banks. तो question banks कहने को रहता है, करते बहुत कम लोग हैं, राइट. सो अगेन इफ यू आर डूइंग इट सिंसियरली इट्स अ वेरी गुड थिंग. सो डैम्स मैरो प्रेप लेटर में, डैम्स में व्हाट आई वुड से इज क्वांटिटी इज अ लॉट. मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा बल्कि जो क्वेश्चन बैंक है वो डैम्स का है. उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको रिवाइज करने में काफ़ी ईजी हो जाता है. यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, ईजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे और हार्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे. इससे क्या होता है कि हम पढ़ बहुत ज़्यादा लेवल कर रहे हैं, लेकिन नीट पीजी हो सकता है ईजी आ जाए, राइट. वन लाइनर्स अब भी आए, क्लिनिकल वन लाइनर्स.
तो उस केस में डैम्स इज बेटर कि आपको कहीं ना कहीं क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो आप क्वेश्चन बैंक के साथ साथ ही रिवाइज कर सकते हो। बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू आर समवन जिसको बुक रीडिंग करना है, तो बुक की लाइन टू लाइन तो वो मैरो में अच्छी दी हुई है। जो मैरो के क्वेश्चन बैंक है वो बुक से छापे जाते हैं एज इट इज़, तो उससे क्या होता है कि आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपकी बुक रीडिंग सॉर्ट ऑफ होती जा रही है, और जो रेफरेंस पॉइंट है वो भी आपको मिल रहे हैं, और दिस विल हेल्प टू रिटेन बेटर द बुक। ओके, सो इफ़ यू आर अ प्रॉफ स्टूडेंट जिसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम पे, वो अभी से शुरू करेगा, वो सारा क्वेश्चन बैंक करते करते इंटर्न तक पहुंचेगा, गो फॉर मैरो। बट इफ़ यू आर एन इंटर्न हु इज लुकिंग फॉर क्वांटिटी बट ईजी टू रिवाइज, ईजी टू डू फॉर नीट पीजी, डैम्स। प्रेप लेटर मेरे को दोनों का मिक्स मैक्सचर लगा जो है, बट अगेन नोट्स और क्वेश्चन बैंक में मिसमैच रहता है, आपको क्वेश्चन बैंक में से काफ़ी पॉइंट्स ऐड करने पड़ते हैं, विच इज़ अ टीडियस टास्क, ठीक है, बिकॉज उसको कोई समझाने वाला नहीं रहता, तो फिर वो बहुत ऐसे रट्टाफिकेशन जैसा हो जाता है। बट अगेन जो हैं फीचर्स जो हैशटैग वाले हैं क्वेश्चन बैंक में, लाइक इफ़ यू गो कि ये क्वेश्चन है, इसमें हैशटैग नीट पीजी, रीसेंट नीट पीजी है ना, हैशटैग क्लिनिकल, हैशटैग वन लाइनर, हैशटैग फैक्ट, तो उससे क्या होगा, आप एक डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आप जो बार बार भूलते हो हैशटैग फैक्ट उनके क्वेश्चंस कर लिए, तो वो मैरो में काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया रहता है। कस्टम मॉड्यूल आज की तारीख में तीनों ऐप्स में मिलते हैं, जो कि आप खुद से अपना एक मॉड्यूल बना सकते हो, दैट्स नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट। लॉन्ग सब्जेक्ट्स में व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप मैरो का क्वेश्चन बैंक कर लो, बिकॉज लॉन्ग सब्जेक्ट में बुक रीडिंग करनी पड़ती है, मेडिसिन में आप थोड़ी बहुत बुक पढ़ते ही हो तो क्वेश्चंस लगा लो। शॉर्ट सब्जेक्ट्स में आपको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है तो यू कैन गो फॉर डैम्स क्वेश्चन बैंक। नाउ दिस इज समथिंग नॉट एवरीवन हैव, ऑब्वियसली आप बोलेंगे मेरे पास तो एक ही क्वेश्चन बैंक है, तो जो है उसको प्रेफर करो। और यूजुअली पीपल क्वेश्चन बैंक दूसरे कोचिंग्स का भी ले लेते हैं क्योंकि सस्ता आता है, 6-7 हज़ार का आता है, तो यू कैन हैव अ ट्राई। देन अगेन द डैम्स में क्या है कि आपको वेरी लॉन्ग क्लिनिकल्स भी मिल जाएंगे और इंटीग्रेटेड भी मिल जाएंगे आज की तारीख में, तो पैथोलॉजी का क्वेश्चन एनाटमी से इंटीग्रेट होकर मिल सकता है, और यहाँ पे लॉन्ग क्लिनिकल क्वेश्चन आपको मैरो और प्रेपरेटर में मिलेंगे, बट इनका क्वेश्चन बैंक एक काफ़ी बल्कि वॉल्यूम में बना हुआ है, एंड इट्स नॉट दैट ईजी टू कीप अपडेटिंग विद टाइम। सो दिस इज माई टेक ऑन क्वेश्चन बैंक्स। देन इफ वी गो एड टू एड-ऑन्स, तो एड-ऑन्स में मतलब पर्ल्स हो गई, पर्ल्स जो मैरो में है, डैम्स में फ्लैश कार्ड्स हैं, डैम्स में आंकी के जैसे आप खुद के फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो, उसको रिवाइज भी कर सकते हो। मैरो में ऑलरेडी प्री फॉर्म पर्ल्स है जो कि बुक्स के टेबल्स होते हैं या हाई यील्ड पॉइंट्स होते हैं, और प्रेप लेटर में भी वो चीज़ अवेलेबल है ट्रेजर्स नाम से, और आई गेस मोर और लेस इक्वल है, इतना ज़्यादा कोई उस पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे। यूज़र इंटरफेस इज अगेन समथिंग दिखने में एस्थेटिक हो, थोड़ा सा अच्छा लगे, स्पीडली आए, तो आई गेस आज की तारीख में सारी ऐप्स अपना अपना यूज़र इंटरफेस अच्छा कर रही हैं। मैरो का ऑलरेडी स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छा था, बट डैम्स एंड प्रेपरेटर हैव ऑल्सो इम्प्रूव्ड विद टाइम। डैम्स प्रेपरेटर का एक फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी इनोवेशन लाते रहते हैं, जैसे आज की तारीख में कस्टम मॉड्यूल तो ठीक है, एक मॉड्यूल बेस्ड लर्निंग फीचर है प्रेपरेटर का। डैम्स के भी कई फीचर्स ऐसे आते रहते हैं, जैसे डेली क्विज़ जो 5 क्वेश्चन की होती है, उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग आती है सॉर्ट ऑफ 1000-2000 बच्चों में, तो वो जो ये एक इनोवेटिव पॉइंट है कि कुछ नया होता रहता है, कुछ एक्साइटिंग होता रहता है कि ऐप खोलो तो हो सकता है हर हफ्ते कुछ नया दिख जाए, तो दिस इज समथिंग विच इज गोज वेरी वेल विद डैम्स एंड प्रेपरेटर। एंड अल्टीमेटली द वेरी मच एडवांटेज ऑफ प्रेपरेटर इज इंडिविजुअल ऐप सुप्रीमेसी। आई गेस दिस इज द बेस्ट फीचर अवेलेबल, एंड आई थिंक दिस शुड ऑल्सो गेट इंक्लूडेड इन डैम्स एंड मैरो। तो क्या होता है कि आप सपोज करो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आपके पास डैम्स है या आपके पास मैरो है, बट आपको पैथोलॉजी जो है स्पर्श गुप्ता सर का पढ़ना है प्रेपरेटर से, राइट? So now you can get that app 2-3 thousand में, which is कॉस्ट फ्रेंडली, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो वॉट एवर यू फील, राइट? सो ना उसमें वो चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है कि इवन इफ़ यू आर नॉट हैविंग एंटायर ऐप, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वहाँ का लेके चुन सकते हैं। तो दिस विल गो वेरी हैंडी इज दिस टाइम कि अगर मैं जब आपको बताऊंगा प्रोफ वाइज, तो आई विल नॉट कंपेयर कि कौन सी फैकल्टी अच्छी हैं, इट्स ऑल फैकल्टीज आर गुड, बट जो कंटेंट है या मे बी जो कनेक्ट है उस हिसाब से यू कैन चूज द इंडिविजुअल ऐप। अगर आपके पास जो भी आपको लगता है कि इंडिविजुअल ऐप किसी सब्जेक्ट की चाहिए, सो यू कैन ऑब्वियसली टेक। जैसे मेरे फाइनल ईयर के टाइम पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्रेप लेटर का दीपक मारवा सर का ऐप लिया था, है ना? आई स्टडीड इट फ्रॉम राकेश सर ओनली, बट सम स्टूडेंट्स टुक दीपक मारवा सर्स। देन रिविजन वीडियोस, सो रिविजन वीडियोस इज अगेन समथिंग अभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर है उनको इतना यूजफुल नहीं रहेगा, बट आज की तारीख में सब पे रिविजन वीडियोस डल चुके हैं, मैरो पे भी है, डैम्स पे भी है, प्रेप लेटर पे भी है, तो दैट डज नॉट मेक मच सेंस एज ऑफ नाउ। देन कमिंग टू द टेस्ट इज अगेन समथिंग जो इंटर्न्स लोग या फाइनल ईयर ज़्यादा देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर आई डोंट थिंक ज़्यादा देता होगा, बट अगेन टेस्ट के लिए डैम्स हैव अ वेरी नाइस कोर्स, टेस्ट एंड डिस्कशन, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट डैम्स ऑफर्स, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपको एक डेडलाइन दी जाती है, इस दिन टेस्ट है,
उस टेस्ट को आप उस दिन अटेम्प्ट करते हो, आपकी रैंकिंग पता चलती है और आपको सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं। तो 6 घंटे में आपको पूरा फिजियोलॉजी रिवाइज हो जाता है। ऑन द अदर नोट, मैरो प्रेप लेटर में जो है वो टेस्ट डले हुए हैं, मतलब शेड्यूल्ड हैं या तो आने वाले हैं, है ना। तो आपको खुद से पढ़ाई करना है, आपको खुद से देना है एंड डिस्कशन आपको पढ़ना है। यूजुअली वीडियो डिस्कशंस टेस्ट के हर टेस्ट के नहीं दिए रहते। तो ऑन दैट क्वांटिटी यू कैन ऑब्वियसली प्रेफर डैम्स, ओके। ऑल्दो जो अमाउंट ऑफ टेस्ट है वो लगभग सेम है, क्विकली अपडेट होता रहता है। जैसे नीट पीजी का पैटर्न बदला तो टेस्ट का पैटर्न भी बदल जाता है, ओके। एंड इफ़ यू वांट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, तो मैरो में थोड़ी सी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, क्योंकि पुराना अगर आप 2017-18 का सब्जेक्ट लगाओगे तो वो ज़्यादा है। अदरवाइज 60 टेस्ट का सिनेरियो रहता है लगभग हर ऐप में। सो नाउ दीज आर द पॉइंट्स वी डिस्कस्ड। सो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज स्ट्राइक रेट। आप अगर अभी से नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए कि मैं जिस भी कोचिंग ऐप से करूं मुझे 100% या 90% क्वेश्चंस उसी ऐप से मिल जाए। तो नाउ एनी रिसोर्स विल क्लेम 90% एंड दिस इज ऑब्वियसली ट्रू ऑल्सो बिकॉज दे टीच थिंग्स वेरी वेल। मतलब वो काफ़ी 5-6 साल से एनालिसिस करके आपको वो पढ़ा रहे हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम एनी रिसोर्स द स्ट्राइक रेट विल बी गुड। ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी कवर्ड। नोट्स में नहीं होगा तो क्वेश्चन बैंक में होगा, क्वेश्चन बैंक में नहीं होगा तो टेस्ट में होगा। बट इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना रिटेन कर पाते हो और कितना फेच आउट कर पाते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद पैनिक भी नहीं करना है कि अरे मेरे पास तो मैरो है, प्रेपरेटर में ये फीचर अच्छा है, डैम्स में ये फीचर अच्छा है तो मैं वो भी ले लेता हूँ। नहीं, you need to understand what is with you need to fetch out things with that, okay. And then now coming to the most important point, cost analysis, right? So general notion जो आप किसी से ही पूछोगे तो लोग बोलेंगे कि DAMS is a bit costlier than Marrow and PrepLadder is the I guess cheapest, नहीं बोलना चाहिए but cost effective, right? So this is the general notion, but according to me DAMS और Marrow लगभग सेम पड़ जाता है in the long run। PrepLadder is obviously the most cost effective option. So DAMS में क्या होता है कि लाइक आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो, सो ऑल्दो लाइव क्लासेस की प्राइसिंग जो होती है वो 50,000 to 1 लाख होती है, बट वो डिस्काउंट कुछ ना कुछ अर्ली बर्ड या आपका प्रॉफ के हिसाब से डिस्काउंट मिल जाता है। सो लेट्स अज्यूम 50,000 पर ईयर। या लाइव वर्चुअल क्लासेस जहाँ पे सेंटर लाइव क्लास का नहीं है बट वहाँ टेलीकास्ट आता है, वो 35,000 की पड़ती है। तो ये आपको 2 बार ही सारा लेना पड़ेगा, एक बार आपको सेकेंड ईयर में और एक बार आपको थर्ड ईयर में। इसमें आपका पूरा 4 साल का सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, और आप फ्री हो जाओगे। आप उसके बाद आप चिल करो, आप मतलब अपना क्वेश्चन बैंक लगाते रहो। बट मैरो में क्या होगा, आपको 30,000 पर ईयर एवरेज, अगर आप 2-3 साल का लेते हो तो ऑब्वियसली वो सस्ता पड़ता है, बट ये आपको कम से कम 3 बार लेना पड़ता है, राइट। सो लगभग मतलब ऑलमोस्ट इट इज़ मोर और लेस सिमिलर। फिर इसमें आप नोट्स की कॉस्ट भी ऐड करते हैं, आजकल फाइनल ईयर प्रैक्टिकल का कोर्स भी है, तो आई थिंक इट्स मोर और लेस सिमिलर। या थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो तो इट गोज इन दैट पर्टिकुलर रेंज। ऑल्दो PrepLadder में ये प्राइसिंग भले सेम हो बट वॉट हैव दे हैव इट एडवांटेजेस इंडिविजुअल ऐप्स। सो इवन इफ यू आर समवन की जो पूरा नहीं भी ले पाता है तो 2-3 हज़ार में आप एक ऐप ले सकते हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और आप वो प्रॉफ का अगर तीनों ऐप भी लोगे तो लगभग उतना ही पड़ जाएगा, राइट। सो आजकल प्रॉफ पैक्स भी आने लग गए हैं मैरो, PrepLadder, डैम्स में भी, जिसमें आप एक प्रॉफ को 6-7 हज़ार रुपये में पूरे प्रॉफ के 3-4 सब्जेक्ट कर सकते हो। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर सम कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज, बिकॉज उसमें क्या होगा कि आप जेन्युइनली फर्स्ट प्रॉफ में सिर्फ फर्स्ट प्रॉफ ही पढ़ पाते हो, तो आप इधर उधर भागने की जगह ठीक है 6-7 हज़ार रुपये में आपको एक ऐप मिल जाएगी जिसमें आप एंटायरली डिपेंडेंट नहीं भी रहे, तो यू कैन यूज इट एज अ रेफरेंस। सो नाउ गाइज दिस वीडियो हैज़ बिकम वेरी लार्ज, सो आई थिंक जो नेक्स्ट पार्ट है कि मतलब अब मैं आपको 4 वीडियोज़ और डाल दूंगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, कैसे उसको यूज़ करना है और किन सब्जेक्ट में टीचर्स सारे अच्छे हैं बट आपको कैसे यूटिलाइज करना है। सो आई होप द कंक्लूजन इज क्लियर। क्लासेस का, देन आपका नोट्स का, देन आपका क्वेश्चन बैंक, एड ऑन्स, टेस्ट एंड द स्ट्राइक रेट रिमेन्स द सेम। Cost you need to decide upon to yourself. So conclusion is you can expect individual year wise guidance and how to utilize. Till then, please subscribe the channel if you have right now not done it. Let's make it a family of 100K soon. This is my Instagram handle, Telegram handle. Feel free to connect with me there as well. Thank you so much guys. I hope कि इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला हो. We will also include the other platforms soon and the other areas as well. Thank you so much. Stay safe, stay healthy and keep learning.